ये एक स्पेशल वीडियो है। मेरा नाम श्रावणी है। ये एक स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो आरआई के बारे में है। ये एक स्पेशल वीडियो है। इसमें हमारी दी लोग हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रावणी। मेरे इंट्रो से तो आप सबको पता चल ही गया होगा, एटलीस्ट सारे आरआईएंस को तो पता चल गया होगा कि ये एक स्पेशल वीडियो है। मेरा आज का प्रीफिक्स था। So this video is a very special one because I requested my hostel seniors to share their experiences and memories related to RI. And I'm very thankful to them because they took out their precious time for this video. Also, only they and I know that how much time I have taken to make this video. Some things do take time, but उसका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी श्योर दैट उनकी बातें सुन के आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। सो नाउ लेट्स लिसन टू आवर सीनियर्स एंड अभी के जूनियर्स के सुपर सीनियर्स को। सो आप लोगों की तरफ से हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें कि मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ, जिसमें पूछा गया है, विल यू लाइक गेटिंग अस एज योर जूनियर्स अगेन? तो इसका आंसर येस होगा। और आप किसी भी सीनियर से पूछोगे, इसका आंसर येस ही होगा। यू वर अमेजिंग जूनियर्स, लाइक यू वर अमेजिंग। और हम लोग भी जब जा रहे थे तो आप लोग को बहुत मिस कर रहे थे, और हमें कभी भी अगर कोई जूनियर चाहिए तो आप ही चाहिए। वी वॉन्ट यू एज आवर जूनियर अगेन एंड अगेन। Next question, Nidhi di, one funny incident from your RI journal. Funny incident, we had a lot of hilarious and funny incidents, but एक जो मुझे याद है, तो फाइनल सेमेस्टर में वी हैड समथिंग नोन एज ओपन एग्ज़ाम। मुझे नहीं पता किसको याद होगा किसको नहीं, बट एक ओपन एग्ज़ाम हमने दिया है और उसमें क्या हुआ कि सम इनसाइड जोक्स आने लगे। मतलब मैं और मेरे कुछ दोस्त, वही मैंने जो बताया, मेरा जो फ्रेंड डॉट था उसी में से मैं और मेरे दोस्त कुछ इनसाइड जोक्स आए, एंड वन लेड टू अनदर एंड वन लेड टू अनदर, एंड पूरा इंटायर एग्ज़ाम, आई थिंक 2-3 घंटे का या 1 घंटे का एग्ज़ाम था, आई डोंट रिमेंबर प्रिसाइजली, बट हम सिर्फ हंस रहे थे, एग्ज़ाम में कोई फोकस नहीं था। तो वो इंसिडेंट है कि मुझे याद है। One thing you regret about not doing in RI and want to suggest juniors to surely experience. My suggestion would be participate in everything, go and watch every cultural competition, make friends, enjoy. पूरा दिन पड़े पड़े रूम में पड़े पड़े सोना मत मेरी तरह। साक्षी दी, आप जैसी सीपी और कभी नहीं देखी। द वे यू हैंडल आवर हॉस्टल इज स्टिल रिमेंबर टुडे। आई विश मैं आपकी तरह स्ट्रांग हो पाती। तो टू दिस आई रियली वांट टू से कि I learned how to be a good CP from our senior. When we first got into the hostel, we had our third year staying with us, like you guys did. Like we were your third year. Same way we had our third year living with us. And there was this Bhavishya Didi. She was the CP at the time, and she was the best in the game. She was the best decision taker. I don't know the math behind it, or I don't know who helped her. Maybe people must have helped her going through all the decisions or executing everything, but she did it all. She did it in front of all of us. She made plans, she executed it, everybody followed her decisions actually. And she really made us pull all nighters to decorate the hall, to decorate with the theme. Whenever there was a festival, we used to decorate it all night. Everybody in our batch, everybody would sit straight and cut, paste, whatever their skill may have been. So I learned a lot from her. And about this strong part, I wish I was that strong. I don't think so that I was that strong when you guys came in. There was a huge lot of mental weight on my head already. I was already suffering from some very personal issues. And I think I was not the strongest. I think I was the weakest at that time. That was the worst time I could ever remember. Not because of you guys, obviously, because of what I was already suffering from. And this was an additional responsibility. And I just wanted to make sure that I do this part very correctly and very promptly. So I think this is what I did. I was not the strongest. If you know me at all at that time, or you ask my friends around, you will know that that was not the most strongest part I think I was at that time. I did believe in one thing, like fake it till you make it. If it worked for me, it might as well work for you anytime, any day. If you believe that I was the strongest, then that is the way to go. Which place in whole RI was your favorite and why? Yes, so I had like 3 favorite spots in RI. One of them was the mandir, because obviously shanti चाहिए हमें life में,
And second was of course my room. My room was my comfort space, my everything, because मेरे रूम से ना व्यू बहुत अच्छा आता था. एंड थर्ड वुड बी द लाइब्रेरी, क्योंकि वहाँ इतनी ठंडी, आई मीन इतनी गर्मी रहती है, इतना मतलब भुवनेश्वर का वेदर इज़ समटाइम्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. तो फिर लाइब्रेरी में एसी था, बैठे रहो वहाँ पे, टाइम पास करो. थिंक यही तीनों. और एक और क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया है, इफ़ यू विजिटेड आर आई रिसेंटली देन विच टाइम वॉज गुड, जब आप सब यहाँ थे या अभी का टाइम. तो बहुत रिसेंटली तो मैं आर आई अभी मैंने विज़िट नहीं किया है, बट मैं ये नहीं कह सकती कि पहले का टाइम ज़्यादा अच्छा था या अभी का टाइम ज़्यादा अच्छा है. दोनों टाइम्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो हमारे टाइम में मुझे ये लगता था जो अच्छी बात है वो ये थी कि हम लोग सब ज़्यादा मिलजुल के रहते थे, लाइक जूनियर्स सीनियर्स. हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग्स ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी. बट आज वैसा नहीं है शायद, मतलब हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, जैसा मुझे पता चला है. One thing you miss the most, which didn't feel so special while staying there. That one thing would be evening walks with Sheetal, Kirtika, and Shivani. I really cherish those moments, and it was so special. Maybe none of us realized back then. One thing you regret about not doing in RI and want to suggest juniors to surely experience. One thing that I regret is maybe I didn't make many friends. मेरे फ्रेंड्स जो थे, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था एक डॉट था. मेरे सिर्फ 4-5 दोस्त थे, जिसमें मुझे लगता है बाद में सिर्फ मतलब एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 2 होते थे. मेरे अलावा तो हम 3 हो गए. ऐसे मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा दोस्त बनाने चाहिए थे और भी लोगों से बात करना चाहिए था. आई नो एवरी वन वुड से कि दोस्त ना, फ्रेंड सर्कल जितना छोटा उतना अच्छा है, बट बात करने में क्या जाता है. मैं इतनी इंट्रोवर्ट थी, बात भी नहीं करती थी. मैं तो अपने जूनियर से भी बात नहीं करती थी. बट हाँ, बात करना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए. और मान लो वो तुम्हारे दोस्त भी बन जाते हैं तो फाइनल ईयर तक या उसके बाद आपको पता चल जाता है कि कौन असली है एंड कौन है ना, कॉलेज तक ही था. तो वी शुड मेक फ्रेंड्स, वी शुड ट्राई टू नो पीपल. एंड मैं अपने डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, बाहर मतलब बाहर के डिपार्टमेंट से मेरा मतलब वही कॉलेज का जो BSc BEd हुआ या BEd हुआ MEd हुआ, किसी भी लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए और अपना जो दायरा है थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जो मैं नहीं करती थी और मुझे लगता है मुझे करना चाहिए था. सो दैट आप बोल सकते हो. दीदी आप लोग का सारा इंटरेक्शन रश्मि मैम से परमिशन लेके करते थे क्या? तो रश्मि मैम से परमिशन लेते थे, लेकिन टेक्निक होती थी एक, लाइक मैं सीपी थी, मैं सीपी थी जिस टाइम में, उस टाइम पे जूनियर्स आए थे हमारे हॉस्टल में. तो ऑब्वियसली मैंने परमिशन ली थी और मैंने उनसे यही कहा था कि मैम एक जनरल इंटरेक्शन करना है हमें, ताकि हम उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता सकें हॉस्टल के, और वो भी हमें जान सके ताकि वो हमें अप्रोच कर सकें. तो इट वाज़ हर आइडिया ओनली कि हाँ ठीक है, तुम लोगों ने सारे रूल्स और वो सब बता दो, बिकॉज शी वॉज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. तो काइंड ऑफ इट वाज अ परमिशन एंड काइंड ऑफ इट वाज आवर वे कि हमें किस टाइम पे करना है. वो चीज़ें वो कंट्रोल नहीं करती थी, हम रात को 10 बजे करें 12 बजे करें. बट इफ़ वी टेल हर कि हाँ मैम हम कंट्रैक्शन करना चाहते हैं, सो इट वाज ऑलवेज विद द परमिशन. बट शी डिडंट नो कि एक्चुअली में क्या होता है इंटरेक्शन में. और इवन दो शी न्यू, आई थिंक शी लेट इट स्लाइड बिकॉज शी वाज अ वार्डन फॉर लाइक 20-30 years of the same hostel, so she must know about things. So I think in a way we did take her permission. Will you like getting us as your juniors again? Yes, of course, but Sakshi can tell this one better. One thing which I didn't feel so special while staying there was not missing out on my breakfast, lunch, and dinner. Or when you are sick, somebody would be there to remind you to eat to have your medicine. I think I took it very lightly. But now that I'm working and I'm living alone, doing everything all alone, I realized that this was one thing that I thought is very basic of them to do for me, but it wasn't until you realize and you grow up. There are not many people who will go with you for your breakfast, lunch, and dinner, or will offer you medicine when you are sick, or will take you to hospital at 2 a.m. I think this is the one thing which I really feel that that is very special, obviously. What is that one thing जो अभी के juniors कभी experience नहीं कर पाएंगे? I think that one thing
would be that senior and junior bonding that uh, people used to have in RI. I think that is gone. Everybody is now more individualistic. One thing you regret about not doing in RI and want to suggest juniors to surely experience would be participating in RISM, even though I had the chance to participate, but we had this rule kind of thing to let third year and fourth year participate because it is their last year. And I was in second year, so voluntarily I did not participate. And when when I was in third year, it was COVID, so RISM did not happen. In fourth year, RISM did not happen again. So I think one thing that I missed out on was RISM, 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 ऐसे ही बोलते थे हम. And if given a chance, I think me and all of my batchmates would want to do it again. I think this is the one thing that we all collectively missed out on. What made you cry the most while in RI? अरे यार B.Ed के पेपर्स, एजुकेशन के पेपर्स, वही. बट जो सबसे बुरा मुझे लगा वो ये है कि अपना रामानुजन अब गर्ल्स हॉस्टल नहीं रहा, अब वो बॉयज़ हॉस्टल है. और हमारी इतनी सारी मेमोरीज, हमारा होली सेलिब्रेशन, हमारा दिवाली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, एवरीथिंग, जिस तरीके से हम लोग डेकोरेट करते थे और जिस तरीके से हमारा डीजे नाइट होता था, ओ माय गॉड, वो सब याद करके अच्छा लगता है और बुरा भी लगता है, लाइक जस्ट द वे नॉस्टैल्जिया हिट्स. तो या वो एक चीज़ मुझे बुरा लगता है कि रामानुजन हम नहीं जा पाएंगे, इट्स अ बॉयज़ हॉस्टल, और अब हम लोग विजिट करने भी जाएंगे तो अंदर नहीं जा सकते. तो दैट चेंज, नो, दैट्स नॉट अ गुड चेंज. So that's the only thing I want to mention here. So yeah, that is the change I don't like. मैंने बहुत सारे प्लेट और बहुत सारी कटोरी और बहुत सारे चम्मच घुमाए हैं, और अगर इफ़ यू आर द पर्सन जिन्होंने वो चम्मच और कटोरी और थाली बटोरी है, आई वुड लाइक टू हैव देम बैक. मेरी मम्मी अभी भी मुझसे हिसाब मांग रही है. One unforgettable memory of yours in HB Shed. HB Shed की memories. तो भाई HB Shed है ही खतरनाक. Don't want to share any personal ones, so I will go with Bismita's breakdown in the final year. I think all of us know about it. Next question for seniors. नाम याद करना कंपलसरी क्यों था? मतलब लॉजिक क्या था? अरे दीदी ने बोला है करने का तो करने का है, सवाल ही नहीं पैदा होता है. RI वालों की बॉन्डिंग की कुछ ऐसी बात है कि बॉन्ड तो रहती है. मतलब हमने अपने सीनियर्स को भी देखा है, हम अपने बैचमेट्स को भी देख रहे हैं, हम उन्हें भी देख रहे हैं जिनसे हमारी बात नहीं भी होती थी, बट सबके दोस्त तो रह गए. जो 2-3 दोस्त होते हैं ना, बड़े से ग्रुप में जो 2-3 दोस्त होते हैं, वो हमेशा ही रह जाते हैं. आपको उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ एफर्टलेस फ्रेंडशिप्स होती हैं. तो यू आर लकी इफ़ you have found it, and if you're still looking for it, the point is that you should not look for it. It will come to you. You will always find them when you are suffering, when you are in your bad days. They'll always be there. Even if you have done extremely wrong, gravely wrong, they'll still be standing with you. So I think my good friends are with me. So I hope that friendships, जो हम bonding जो हमारी RI में create होती है, वो for a longer time होती ही है. एंड समटाइम्स कुछ ऐसे लोग भी हमारे दोस्त बन जाते हैं जिनको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम बहुत डिस्पाइज करते हैं कि यार आई डोंट लाइक हर और आई डोंट लाइक हिम एंड आई जस्ट हेट हिम और आई जस्ट हेट हर और हिज एग्जिस्टेंस. बट इवेंचुअली when you get to know them, you learn a lot about them, and then those friendships stays. I think it's all about how you as a person are and how the other person is. So how both of you are communicating and how effortlessly and how open you are about it. Chitali Di, I always get a positivity from you. Thank you so much, whoever has written this one. What was the best part of hostel functions to all the didis? I think best part of hostel functions would be definitely wearing saris, shouting on each other last minute for a bindi, for a jhumka, for a safety pin, 5 kaleshi aurats getting ready in one tiny room. Those things were the best part in any hostel functions. दीदी आपका कौन वहाँ पे स्ट्रेंथ था? ऐसा होता है हर जगह कि हम जब स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं तो
हमें अपनी पर्सनालिटी में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है, मतलब मैं थोड़ा सा शो ऑफ करना पड़ता है। बट आरआई वैसा जगह नहीं है, वहाँ पे आपको लाइफस्टाइल नहीं बदलना पड़ेगा, शो ऑफ नहीं करना पड़ेगा। इट्स अ कंफर्ट जोन, इट्स अ सेफ स्पेस टू बी, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि जब आप सेफ स्पेस में होते हो, जब आप एक कंफर्ट जोन में होते हो, तो यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ, अंदर से वो स्ट्रेंथ आ जाता है कि हाँ। और जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मेरे दोस्त ही थे मे भी, बट येस, एक बार मैं बीमार पड़ी थी, मुझे फीवर आया था और घर की बहुत याद आ रही थी। मे बी सेकेंड ईयर में बीमार पड़ी थी तब। हाँ, सोनाली मेरी स्ट्रेंथ थी, माई रूममेट। वो मेरे लिए दवा लेकर आई एंड उसने मेरा बहुत केयर किया। तो हाँ, आई थिंक थ्रू दिस वीडियो द एंटायर हॉस्टल रिकनेक्टेड अगैन। मैं जूनियर्स के साथ भी एंड मेरे बैचमेट्स के साथ भी 2022 के बाद बहुत लोगों से बातचीत बहुत कम हो गई थी या नहीं होती थी, तो अभी फिर से उनसे एक रिकनेक्शन सा हो गया, मेरे जूनियर्स के साथ भी। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड थैंक कुन्नू, थैंक यू श्रावणी, वी लव यू। Thank you so much, Kirti di, Sakshi di, Chaitali di, and Nidhi di. And I and all of my batchmates, all of your juniors love you the most. After a long time, हमें आपको सुनने का मौका मिला इस तरीके से आरआई के बारे में, तो अच्छा लगा। एंड आई नो दैट मेरे सारे दोस्तों को, सारे जूनियर्स को भी अच्छा लगा होगा। आज हम सबको बहुत अंदर की बातें भी पता चली। So thank you to all the didis to reconnect in this way and for supporting my idea of coming together back with in the form of this video. I hope कि in near future हम अगर कभी मैं फिर से ऐसा कुछ चाहूँ तो आप इस जूनियर की विश ज़रूर पूरी करेंगे जैसे आपने इस बार किया। I always feel this and I will always say this कि अभी जो जूनियर्स है आरआई में, दे आर लकी बिकॉज दे आर इन आरआई, बट एट द सेम टाइम थोड़े से अनलकी तो वो है क्योंकि उनको हमारे जो सीनियर्स थे वो नहीं मिले हैं, क्योंकि हमने उनसे इतना कुछ सिखाया एंड द बॉन्ड वी शेयर्ड उनके साथ, वो बॉन्ड अभी तो देखने को नहीं मिलता है। द बॉन्ड बिटवीन अस वॉज ऑफ लव, केयर एंड फ्रेंडशिप। जब ज़रूरी होता था वो हमें डांटते थे, जब ज़रूरी होता था वो हमें सिखाते थे, जब ज़रूरी होता था वो हमारी ढाल बन के खड़े रहते थे। जिस दिन वो हॉस्टल से चले गए, कैंपस से चले गए, कैंपस इतना खाली था, पता नहीं, एज अ जूनियर वो चीज़ मैंने तो फील किया है, किसी और ने किया हो या ना हो। जब वो थे लगता था कि हम सीनियर्स बनेंगे, मज़ा आएगा, लेकिन जब वो चले गए मैंने ये खुद रियलाइज़ किया है कि यार जूनियर बने रहने में जो प्यार, जो केयर आपको सीनियर से मिलेगा वो उनके जाने के बाद तो नहीं मिलने वाला। एंड येस, हमारे सीनियर्स को अगर आप मिलोगे कभी, अगर आप उनसे बात करोगे कभी, तो आपको उनमें आरआई का रिफ्लेक्शन दिखेगा। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनकी जूनियर हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वी विल ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग मोर सीनियर्स टुगेदर through Inara Vlogs. Thanks for watching this video. Do share this video especially with all the RIans. Like, share and subscribe to my channel if you have not done it yet. फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।